You have to ask yourself why you want to give GATE BT. It is because of IITs, NITs, or degree you want, like masters or PhD, or it may be some job, PSUs, whatever it is, but that should be permanent till exam. At least till exam it should be permanent if you want to successful and want to be topper, right? So first thing is, in any competitive exam, is self motivation, because when you start something you feel so motivated, right? Oh, I want to give but that particular exam, that particular thing, and I want to be topper, or I want to just crack it anyhow. But what happens is when you start it, you face some difficulties, right? You feel some subjects are hard. You feel, oh, so many students are there. Oh, these people are giving examination. Some dates has been changed, some syllabus has been changed, and so on. And then you start feel like you are demotivating yourself, right? So these things you have to keep in your mind. If you're starting it, you have to finish it. You have to finish it, and until you are not finishing it, you have to carry on your work. You have to do your part. You have to do your part daily, and you don't have to think about the result. Result thing you have to think only after giving the exam. After giving the exam, when you are done with the examination, then you have to think how much you did, how much marks you are expecting, what should be your AIR, and all these things. But until you are giving the exam, your main thing is how much you are covering the syllabus. Okay, are you studying daily or not? So you have to consistent. आपको रोज पढ़ना है, राइट? तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डेली पढ़ना है, और अपने आप को ये बताना है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं. क्योंकि आप हर बार ये सोचेंगे कि यार छोड़ देते हैं, जस्ट लीव इट, बिकॉज आपके दोस्त कुछ और कर रहे होंगे, आपके दोस्त मौज मस्ती कर रहे होंगे, आपके दोस्त पार्टी कर रहे होंगे, और आप उस समय क्या कर रहे होगे? पढ़ रहे होगे. उस समय आपको ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए. क्या चाहिए? वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका गोल है, और उस गोल को आप तो तब तक पकड़ के रखना है तब तक आप ये एग्जाम दे नहीं देते. समझे? सो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर दिस एग्जाम. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड बिफोर syllabus also. This is the first thing you should be aware of, that is your self motivation toward your goal, right? तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है हमेशा. तो ये पहली चीज है. तो दूसरी चीज क्या है? किसी भी एग्जाम के लिए दूसरी चीज है सिलेबस, राइट? एंड यू नो दैट द सिलेबस ऑफ गेट इट डजंट चेंज मच, राइट? सो 2021 के लिए अभी सिलेबस 2021 के लिए सिलेबस अभी आया नहीं है, आईआईटी बॉम्बे ने नोटिफाई नहीं किया, बट ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे. वही सिलेबस होगा जो 2020 में था, ऑलमोस्ट 99%. मे बी सम एक दो टॉपिक, 1 or 2 topic maybe they can change, but you don't have to worry about that. You have to worry about this part. So you have to start preparing from right now. Okay, so now we have around 6 months, right? We have around 6 months, and suppose I am taking 5 months for your preparation and 1 month for your maybe test or maybe revision. Then you have full 5 months for preparing all your subjects of GATE, right? So what you have to do is you have to take the printout or maybe PDF of syllabus, right? And you have to read it. You have to read all the topics, whatever is written, at least 3 to 5 times. You must be aware of each and every term written on that syllabus page. That suppose starting with biochemistry, it's written carbohydrate, protein, biomolecules, etc. So you should be aware of these keywords, whatever it is written. If somebody is asking you at some time, कोई पूछ रहा है कि यार ये है क्या सिलेबस में, you should be like, हाँ ये है या नहीं है, you should be very clear, right? So आपको सिलेबस एकदम कंठस्थ कर लेना है. जैसे ये भी एक पार्ट है आपके एग्जामिनेशन का, ऐसा सोच के चलना है.
3 से 5 बार सिलेबस को पढ़िए अच्छे से। जब भी आप देखें, जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ें कोई, तो आप एक बार सिलेबस जरूर देख लें। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको कुछ छूट तो नहीं रहा है। जब आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी ही उतना दिया हुआ है गेट के, कम से कम इतना पढ़ना है। एटलीस्ट वाला पार्ट है वो, एटमोस्ट वाला पार्ट नहीं है, तो आपको उतना तो करना ही करना है, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिलेबस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो एंड टेक द सिलेबस ऑफ 2020 एंड आई एम श्योर दैट वो चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा 2021 का सिलेबस। और आपको सिलेबस को ढंग से देखो और ये देखो कि आपका कितना पार्ट कवर हो चुका है कॉलेज में, नोट्स में, या आपने खुद भी कितने अच्छे से पढ़ा है, और कितना आपको लगता है कि आपको 0 नॉलेज है या 10% तक नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है। ये चीजें आपको खुद को संभालनी पड़ेगी कि आपको 0 से 10% में नॉलेज है, आपको 50% आपको पता है, और आपको पता है कि हाँ ये सब्जेक्ट 80 to 100% मेरे को सिलेबस है। तो इन 3 चीजों में आप बांट सकते हो सिलेबस को, ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। इसमें आपको अपने आप को रखना है, आपको देखना है कितने प्रतिशत सिलेबस आपका इस कैटेगरी में है, कितना 50% में है, कितना 80 to 100% में है, और उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज सेल्फ मोटिवेशन, सेकंड थिंग इज यू शुड बी नोइंग द सिलेबस you are giving the exam, right? So you must be aware of all the things which are coming in that particular exam. So second thing is syllabus. Now the third thing comes in books. So I am supposing that you are starting the preparation from this month only. From this month of July, I'm making the video 2020, end of the July, right? It is end. Or starting of August 2020. So if I'm assuming this, that you are starting by now, means you don't have much time, 5 to 6 months. So by this, if you're starting by this time, आप उन बुक्स में नहीं जा सकते जो आपको फैकल्टीज आपके कॉलेज में बताते हैं या आपके सेमेस्टर में चलते हैं, जो पूरे सेमेस्टर के लिए होते हैं। क्या प्रेस्कॉट, लेनिंजर, आपके क्यूबी, ये सब बुकें तब होती हैं जब आपको बहुत टाइम होता है, 4 साल 5 सालों को पढ़ना है, एक साल आपको एक बुक पढ़नी है, तो ये बुक्स अच्छी होती हैं। बट नाउ यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट? सो यू हैव टू मेक सम अदर स्ट्रेटेजी। सो हाउ विल यू डू दैट? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई डिड and how I got AIR 41, I'm telling you that particular thing only. I'm not hiding anything, right? So I'm showing all the things what I did. So from my point of view, you need only 3 books, and I'm telling you what are that 3 books are. First one is Biotech, a problem approach, okay, by Pathfinder. Second one is MCQ, Life Sciences, Biotech by Pathfinder, and third one is previous year GATE question, and that previous year is chapter wise, right? That should be either GK publication, they publish it, or Willy, so you can take any of it. So I'm not biased and I'm not मैं इनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, but I use these books and that's what I am telling you. So this should be, these 3 books you should take if you're starting preparation from now. So these 3 books you only need to achieve even AIR 1. I'm telling you, believe me, you can achieve AIR 1 by just taking these 3 books. Okay? तब 3 books पढ़नी है। थ्योरी के लिए कौन सी पढ़नी है? सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, थ्योरी के लिए आपको बायोटेक, अ प्रॉब्लम अप्रोच, राइट? और एक दूसरी चीज होती है क्वेश्चन से थ्योरी, ये रिवर्स मेथोडोलॉजी होती है। इसके लिए मैं जो बुक बता रहा हूं, ये MCQ जो मैंने बताई, लाइफ साइंसेस, बायोटेक, पाथफाइंडर, राइट? तो ये सबसे अच्छी बुक है। जब आप किसी थ्योरी को पढ़ लें, एक चैप्टर को, तभी क्वेश्चन लगाएं पक्का। इस क्वेश्चन अगर लगाने पर आपको लगेगा कि आप थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप इसके 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने सारी थ्योरी बता दी आपको जो आपको जाननी थी उस क्वेश्चन के बारे में। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है ये MCQ के लिए और आपके थ्योरी रिवीजन के लिए।
और एक सबसे जरूरी बुक है जो हर किसी के पास होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उसका प्रीवियस ईयर, एंड प्रीवियस ईयर शुड बी chapter wise. Like suppose you are doing for one particular chapter, maybe I am saying subject as a chapter, bioprocess engineering. So now after doing this, you have to do this particular book question also. If it is available in this book, you have to do that also, because I think in this book only one chapter is not included, that is bioprocess engineering, and other chapters are there for all the GATE syllabus. So for bioprocess engineering, I am telling you, अगर आपके पास आपके कॉलेज का अगर आपके पास नोट्स है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये पढ़िए थ्योरी बायोटेक प्रॉब्लम अप्रोच और ये क्वेश्चन लगाइए एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, ये बहुत है अभी के लिए। बाकी जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो आपको और अच्छे से इसकी पता चल जाएगा कि आपको कैसे इस पर्टिकुलर चीज को टैकल करना है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग को। सो इसमें मेन चीज होती है क्वेश्चंस, सबसे अलग सब्जेक्ट यही होता है बायोटेक में। तो आपको सिर्फ इसके लिए क्या करना है, ये इसमें चैप्टर दिया हुआ है थ्योरी, वो पढ़िए और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए। और आपको लग रहा है ये दोनों आपने कर लिया, इसके बाद आपको टाइम नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो आपको बोलूंगा मैं कि आप डीबीटी बीईटी करके एग्जाम होता है, डीबीटी जीआरएफ, उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर थीम। क्योंकि मैंने देखा है इसके बायोप्रोसेस के डीबीटी बैट के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन जो अपने गेट के क्वेश्चन है वो काफी मैच करते हैं। देन यू हैव टू यूज बोथ, अगर आपको ये दोनों हो गया है तो। अदरवाइज सबसे जरूरी यही है कि आप इसके थ्योरी यहां से पढ़ें और क्वेश्चन प्रीवियस से लगाएं। जब ये दोनों हो जाए तो आप डीबीटी जीआरएफ के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं बायोप्रोसेस के लिए। तो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर अबाउट द बुक्स। आपको सिर्फ 3 बुक्स पढ़नी है, बायोटेक प्रॉब्लम अप्रोच, एमसीक्यू लाइफ साइंसेस बायोटेक पाथफाइंडर, और थर्ड इज प्रीवियस ईयर। तो आपको पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आई एम टेलिंग यू नाउ। सो हाउ टू रीड द बुक, राइट। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कैसे पढ़ना है। बुक्स तो हाँ आ गई, लेकिन करना क्या है। सो नाउ सपोज यू हैव 5 to 6 months, राइट, and I'm taking 5 months for reading. Now you have to read very like what I say precisely और अपना दिमाग लगा के करना है। अगर आप 4th year में हैं, because so for this year IIT Bombay has given like 3rd year students can also appear for it. So 3rd year student you can also join for this time you get 2021. So I'm telling either you are 3rd year or 4th year student. So I'm telling you, suppose you have covered already 70% of your syllabus. After seeing your syllabus, you must be knowing that आपने कितना syllabus cover कर लिया है. So if you have covered the 70% of syllabus, now I am telling you what you have. If you have covered this particular thing, then you have to follow this one. What I am telling. तो आपको start करना है पहला बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से। किससे? बायोप्रोसेस और इंडस्ट्रियल बायोटेक, ये दोनों एक ही के पार्ट हैं। आपको इससे स्टार्ट करना है। फिर क्या पढ़ना है आपको? आरडीएनए टेक्नोलॉजी सेकेंड नंबर पे, इसको पूरा कवर करना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी को। इसके अंदर क्या आता है आपका? पूरा रिकॉम्बिनेंट पार्ट आता है, प्लांट बायोटेक आता है और एनिमल बायोटेक आता है। ठीक है। थर्ड आपको स्टार्ट करना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक्स नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट, नॉट जेनेटिक्स, राइट। सो थर्ड इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फोर्थ वन इज इम्यूनोलॉजी। फिफ्थ वन इज enzyme science, right? So you have to cover this 5 subjects, okay, in first 3 months. You have to take target that you have to complete this first 5 subjects in 3 months, and for last 2 months what you have to do is bioinformatics first. You have to read. After that you have to take care of genetics, then you have to do microbiology, then bioenergetics or biomolecules, right, these two, and in the last you have to do cell biology. Okay, so why I am telling this, because
इसके पीछे एक रीजन है और वो है इसकी मार्किंग। गेट की जो मार्किंग है वो कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 13 मार्क्स क्वेश्चन पर ईयर आता है सिर्फ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से, मोस्टली बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से, ठीक है। सो 13 मार्क्स का आरडीएन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग दिस प्लांट एनिमल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लगभग, इट इज अप्रोक्सीमेटली। ओनली फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इम्यूनोलॉजी के अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, एंजाइम से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और इन सबसे इससे 4, इससे भी 4 मार्क्स का, इससे भी 4 मार्क्स का, इससे भी 4 मार्क्स का और इससे भी 4 मार्क्स का। सो सपोज इन फर्स्ट 3 months यू आर कवरिंग दिस फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स, राइट। 13, 26 और 10 36, 40, राइट, 44, 6, 50, अराउंड आप 52 मार्क्स कवर कर रहे हैं, राइट। I'm telling you for my what I got in 2018, I got 57 marks, 57 point something it was, and my rank was AIR 41. Now you can imagine, right? अगर आप इस 5 को अच्छे से पूरा कर लेते हो तो आप तो टॉप 100 तो पक्का हो गया आपका, टॉप 100 को कोई नहीं रोक सकता। पर रेस्ट ये है, तो आपको कैसे स्टार्ट करना वो चल गया, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसका एक और रीजन है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे आपके और आप स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो हम लोग की एक आदत होती है, हम जब भी कॉपी खोलते हैं तो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हर बार, राइट। तो अगर आपने यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट किया है ये तो जब भी रिवाइज करेंगे तो आप पहले स्टेज इससे स्टार्ट करेंगे और जब इनसे स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपके थक जाएंगे तो आपका ये है कि आपको 50 मार्क्स जो थिंग्स थी वो आपने कई बार रिवाइज कर रखी होंगी। तो आपको हमेशा पढ़ना है। अगर आपने ये चीजें आपकी जायज हैं, आपको अच्छे से सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से और सेल बायोलॉजी तक जाना है। बिकॉज दिस सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर CSIR गाइस। ज्यादा थ्योरी है, लेकिन जो गेट है, गेट बीटी जो है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स और ऐसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जो इंजीनियरिंग पार्ट से ज्यादा रिलेटेड हो। इसलिए आपको ये चीजें जाना और आपको इसी तरह से पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप आराम से टॉपर होंगे इस बार। So take care of these things, right? So I told you the books also and how, and so for reading this you have to again use those 3 books only: Biotech: A Problem Approach, Pathfinder, दूसरा MCQ, Life Sciences Biotech, Pathfinder, तीसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हाउ यू हैव टू डू दैट, you have to, so how will you read this? So to make a goal that you have to finish particular thing, so I'm telling you this 20 to 25 days you can take for one subject in first 5 subjects. So whatever आपके जैसे भी कैलिबर है उस हिसाब से आप 20 से 25 दिन पर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। और कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है पेज वाइज। कैसे पढ़ना है, पेज वाइज। आपको टारगेट देना है कि मैंने 1 से 10 पेज पढ़ना है पहले दिन, दूसरे दिन फिर 11 से 20, ऐसे करके। और जब आप एक हफ्ते के एंड में आप लगभग जब कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बार रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है कि जब ये पेजेस पढ़ेंगे तो आपको जो मेन थिंग्स हैं आपके कॉपी में नोट्स के तौर पे लिखना है, मेन बुलेट पॉइंट्स। और आपको बुलेट पॉइंट्स पलटना है सैटरडे को या संडे को, जैसा भी आपका वीकेंड पे होता है। वो पलटने के बाद आपने रिवाइज कर लिया, आपने जो भी पिछले 7 दिन पढ़ा, उसको वीकेंड पे क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं पहले, फिर ये क्वेश्चन बनाने हैं जितना आपने पढ़ा है उसमें से। देन अगेन नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करना है आपको आगे से पढ़ना उसके, और फिर जब वो एक बार खत्म हो जाए तो आपको सारे क्वेश्चन इसके और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्टिकुलर चैप्टर के लगाने हैं। देन आपका एक सब्जेक्ट पूरा माना जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। देन दूसरे पे जाना है। देन अगेन सेम थिंग, पेज वाइज पढ़ना है एंड वीकेंड पे आपको एक क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर एक बार जब कंप्लीट हो जाए तो आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। वीकेंड पे अगर आपको आधा क्वेश्चन पूरा हुआ तो आपको खोजने हैं क्वेश्चंस कि इस पोर्शन के क्वेश्चन कौन से थे जो मैंने पढ़ लिए हैं, वो क्वेश्चन आपको टिक करने हैं इससे भी और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी। जब आपके वो पूरा हो जाए तो आपको दोबारा सारे क्वेश्चन टिक करने हैं, तो इस हिसाब से आपको पूरा माना जाएगा।
सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। एंड सो आप एक बार पढ़ते जाएंगे, तो आपको रखना है कि मे बी 25 दिन बाद जब आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, 20 से 25 दिन के बाद, एंड नाउ जब आपने दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया उसके 20-25 दिन बाद, तो आपको एक रिवीजन सेशन रखना है। कैसे रखना है रिवीजन? सपोज मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट 1 कंप्लीट हो गया, आप आगे बढ़ गए, नाउ वी आर ऑन सब्जेक्ट 2, वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ एक रिवीजन रखना है, कितने दिन का? 1 से 2 दिन का, 2 डेज, 2 दिन का रिवीजन रखिए। उसमें क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट 1 आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके नोट्स, दैट्स इट। फिर आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 3 कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करेंगे? रिवीजन। किसका करेंगे रिवीजन? सब्जेक्ट 1 का, सब्जेक्ट 2 का, 2 दिन, राइट। फिर आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट 3, फिर आप रिवीजन किसे करेंगे? सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 का। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, और इस तरह से रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और आपके नोट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी, एंड ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप इसको करते जाओगे एंड तक, सो यू विल बी टॉपर, राइट। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप आगे बढ़ोगे। तो रिवीजन के जैसा मैंने आपको बताया, फिर बता देता हूं मैं। सपोज सब्जेक्ट 1 आपने पढ़ लिया, तो आप स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 पढ़ोगे, देन आपके पास एक रिवीजन होगा 2 डेज का, राइट। डे 1 में आप क्या करोगे? थ्योरी रिवाइज करोगे। डे 2 पे क्या करोगे? एमसीक्यू प्रीवियस ईयर। जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो खाली राइट आंसर्स को नहीं देखोगे कि हाँ ये थर्ड ऑप्शन सही है, आप उन सभी ऑप्शन को देखोगे और एनालाइज करोगे कि आपको क्या पता है, आप उन थर्ड ऑप्शन, तीनों ऑप्शन के बारे में जो गलत थे, या वो किस चीज के रिलेटेड है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपके नोट्स में, आपके बुक में दिया हुआ है वो आपको नोट डाउन करना है। तो ऐसे करना है आपको रिवीजन, ठीक है। फिर आप जाओगे सब्जेक्ट 3 पे। सब्जेक्ट 3 जब पूरा हो जाएगा तो आप रिवीजन करोगे सब्जेक्ट 1 का और 2 का। देन आप जाओगे सब्जेक्ट 4 पे, देन आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3। फिर आप जाओगे सब्जेक्ट 5 पे, फिर आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट कौन से? 1, 2, 3, 4। ऐसे करना है आपको, और हर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए 2 दिन दोगे आप। कितने? 2 डेज। उसमें क्या करोगे आप? एक दिन थ्योरी, एक दिन एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको अच्छे से करना है। एक बार आप ऑलरेडी कर चुके होगे तो आपको पता होगा, फिर भी इस बार आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, क्या ऑप्शंस आपको उन ऑप्शन के बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप उनको नोट्स वाले कॉपी में नोट डाल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा चीजें जो मेरे बुक में नहीं है, मुझे नहीं पता थी, और ये चीजें पूछी गई हैं। हालांकि वो राइट आंसर नहीं थी, बट वो आगे पूछी जा सकती हैं, तो आपको वो भी अपने आप को बताना है। और आपको हर बार, क्योंकि आप नोट्स रिवाइज करोगे हर अगली बार, तो हर बार आप ये भी रिवाइज करोगे जो आपने नहीं लिखा था, अपने बुक में नहीं पढ़ा था, राइट। सो हाउ विल यू नो दैट यू हैव कंप्लीटेड वन सब्जेक्ट? सो दिस क्राइटेरिया, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? आपने बायोटेक प्रॉब्लम अप्रोच वाली बुक से थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी, उसके बुलेट पॉइंट्स के नोट्स बना लिए होंगे आपके कॉपी में। फिर आपने एमसीक्यू वाली बुक से, वही एमसीक्यू लाइफ साइंसेस बायोटेक पाथफाइंडर की बुक से आपने उसके सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए होंगे उस चैप्टर के, राइट। तब ये पूरा कंप्लीट माना जाएगा सब्जेक्ट 1। तो आपको सब्जेक्ट 2 पे जाना है, फिर आपको रिवाइज करना है, सब्जेक्ट 3 पे जाना है, फिर रिवाइज 1 एंड 2, सब्जेक्ट 1 एंड 2। देन आपको सब्जेक्ट 4 पे जाना है, फिर रिवाइज करना सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, फिर सब्जेक्ट 5 पे जाना है, फिर रिवाइज 1, 2, 3, 4। ऐसे करके आप जब सब्जेक्ट 10 पे जाओगे तो फिर आपको रिवाइज करना होगा 1 to 10। उसके लिए आपको अलग से 20 दिन चाहिए, सबके लिए 2 दिन, 20 दिन। तो ऐसे करोगे तो आई होप कि आप 5 मंथ्स के अराउंड, 5 to 6 मंथ्स के बीच में आप कंप्लीट कर लोगे ये सब कुछ। और आपको टारगेट रखना है कि 20 से 22-25 दिन के बीच में ही रखना है शुरू के सब्जेक्ट, शुरू के 5 सब्जेक्ट। लास्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, आई मस्ट टेल यू, दिस सब्जेक्ट्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स टू दिस वन, यू डोंट हैव टू गो वेरी डीप इन इट। इफ यू फील्स कि ओके ये बहुत ही डीप में है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, आप समझ लीजिए। बिकॉज दिस इज नॉट CSIR और ICM or something. This is engineering exam. They will give you everything and they want to check your aptitude, not your रट्टाफिकेशन कि आपने कितना रटा है।
तो ये सब्जेक्ट में जो जो कम आ रहे हैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें याद रखनी है। आप सिर्फ अगर 12th के लेवल तक की अगर कोचिंग की बुक भी पढ़ लोगे ना इन सब की, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और जो आपने पढ़ी होंगी 12th में, अगर कोचिंग वगैरह किया होगा इन सब्जेक्ट्स का, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो बहुत है। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। तो इनमें आपको कितने दिन देने हैं? इनमें मैंने बोला 20 से 25 दिन। इनमें आपको मे बी 10 दिन बहुत है, 10 दिन सबके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत है 10 दिन, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आपको 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जब आपको टारगेट रखिए कि अगर आप अगस्त के शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीक से, तो आप दिसंबर के लास्ट वीक में, मतलब बाय एंड ऑफ 2020 you should be completed with your this protocol, this particular thing, right? After that you should take, like I will not force you, but आपको लेना चाहिए if you want to be, you want to crack like top AIR in top 10 और top 5 और top 50, okay? तो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है आप मत लीजिए, देन इट इज योर वेस्ट योर मनी। आपने इतना कर लिया, आप आराम से क्वालिफाई करोगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा मैं बताता हूँ, ये आपको क्वालिफायर से रैंकर बनाता है, और यही है जो आपके रैंक को डिसाइड करता है। बिकॉज जब आप टेस्ट सीरीज दोगे आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कैसे 3 घंटा बैठना होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, और उसके बाद आप क्या गलतियां होती हैं। तो जो आपको कम से कम 1 महीने का टेस्ट सीरीज आपको देना है, जिसमें कम से कम 4 से 5 टेस्ट हों, आपको हर वीक में देना है। तो कैसे देना है टेस्ट सीरीज वही बता देता हूँ। बाकी आगे भी ऐसी वीडियोस बहुत सारी आएंगी और बहुत सारे लोग बनाएंगे, बट मैं अभी भी बता देता हूँ आपको कैसे देना है। उसकी जो खैर बात की बात है, आपको 1 वीक में 1 टेस्ट देना होगा, और उस 1 वीक में आपको पूरे उसको एनालाइज करना है, फिर नोट्स पढ़ना है अपने, और जो चीजें आपको नहीं आती थी इस टेस्ट सीरीज में से अपने नोट्स में लिखना है, फिर नोट्स पढ़ना है, फिर सेकेंड टेस्ट सीरीज देना है, फिर वापस एनालाइज करना है। जो चीजें आपको नहीं पता थी आपको अगेन नोट्स में ऐड करना है, देन थर्ड टेस्ट सीरीज देना है, और ऐसे करना है। जब फोर्थ टेस्ट सीरीज हो जाएगा, अगर आपके पास लास्ट वीक बचेगा, तो आपको सिर्फ एक चीज करना होगा, आपको नोट्स की कॉपी पढ़नी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा एक बार, और आप गेट के लिए रेडी हो गए, आप टॉपर। दिस इज सो आई मस्ट टेल यू दैट इन माई एक्सपीरियंस gatebiotech.com करके है, मैं स्टार्ट किया है टेस्ट सीरीज। आपको ये लेना चाहिए लास्ट मंथ में। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस वेबसाइट, बट ये मैंने यूज किया, आप जाकर देख सकते हो उनके वेबसाइट पे। 2018 के लिस्ट में, 2018 लिस्ट में मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, और ये काफी अच्छा था। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम रिजेंबल करते हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या जैम के क्वेश्चन से, या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन से। फर्जी क्वेश्चंस नहीं होते जो कुछ भी बना के विकिपीडिया से छाप के कोई लाइन दे दी आपको। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप gatebiotech.com से ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप किसी और भी में जा सकते हो आप जो आपको पता हो। लेकिन आई मस्ट से कि वो पॉपुलर वालों में मत जाना, जो एमई और सीई और दूसरों के लिए होते हैं, वो बहुत ही वाहियात होते हैं। मैंने लिया था, मेरे को नाम नहीं लेना उनका, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम फॉर दोज टेस्ट सीरीज और दोज इंस्टीट्यूट्स, बट डोंट फॉल इन द ट्रैप इन दोज बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने जो सिर्फ इन सब चीजों को फोकस करते हैं, बड़े बड़े एमई, सीई और सिविल को और इलेक्ट्रिकल को और मैकेनिकल को। gatebiotech.com फोकस्ड है गेट बायोटेक्नोलॉजी पे, they are very focused, they are not giving any other things or any other branches, they are only focused to biotech, gate BT, टाइफर एंड ऑल, राइट। तो आपको सिर्फ फोकस्ड है, इसलिए आपको पता है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दे आर द पीपल who have already qualified and they are working in the core industry of biotechnology, and some are in academia. So it's all your wish, I'm not forcing you, but you must take one test series, whatever कहीं से भी ले लो आपकी मर्जी है, लेकिन लोगे तो आप जो है आप एक टॉपर बन जाओगे फॉर श्योर। सो ये प्लानिंग थी आपको टोटल कैसे स्टार्ट करना है से लेके, और ये थोड़ा सा मैसी दिख रहा है, तो मोटिवेशन पहले आपको होना चाहिए, आपको नहीं छोड़ना है एंड तक, क्योंकि आपको जब मिलेगा तो आईआईटी आपको मिलेगा, आपको मास्टर्स मिलेगा, आपको अच्छी जगह जॉब मिलेगी, आप करोगे तो, आपके फ्रेंड को नहीं मिलेगी अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी देखा देखी नहीं करनी है,
बिकॉज ये सिर्फ 5 से 6 महीने की बात है, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक। सेकेंड थिंग इज सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्या है उसमें अंदर, और आपको क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये सिलेबस में था और मैंने कवर किया है। थर्ड थिंग इज बुक। आई टोल्ड यू 3 बुक्स, राइट? बायोटेक ए प्रॉब्लम अप्रोच बाय पाथफाइंडर, एमसीक्यू लाइफ साइंसेस, बायोटेक, पाथफाइंडर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेल्दी पब्लिकेशन या जीके पब्लिकेशन, दैट शुड बी चैप्टर वाइज, राइट? Then how to read books, I told you. Start with bioprocess and start making notes for every chapters, right? Bioprocess to this cell biology, और starting bioprocess से लेके end में cell biology तक जाना है। और मैंने आपके मार्क्स डिस्क्रिप्शन में बता दिए क्यों इसे स्टार्ट करना है, ठीक है? और कैसे आपको रिवाइज करना है वही बताया मैंने, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के हिसाब से। और आपको कैसे पढ़ना, पेजेस से पढ़ना है। कैसे? पेजेस शुड बी योर टारगेट, 10 पेज 15 पेज ऐसे करके, राइट? जो भी है, जैसे भी आपने बनाया कि इसको 20 दिन में कंप्लीट करूंगा तो आप बांट लो पहले से ही, डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर 20-20 पेज पढ़ूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। और एक टेस्ट सीरीज लास्ट मंथ में आपको पक्का लेना है, और टेस्ट सीरीज को हमेशा एनालाइज करके जो अच्छी चीजें, जो नई चीजें आपको लग रही हैं, ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको नहीं पता तो आपके नोट्स में डालिए और हर बार उस नोट्स को रिवाइज करिए। तो रिवाइज में क्या होता है, आपका नोट्स प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस नोट्स के अंदर क्या क्या है, आपका बायोटेक प्रॉब्लम अप्रोच थ्योरी से है, प्लस आपने जो एमसीक्यू बुक से जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिले वो आपने इसके अंदर डाले होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डाले होंगे कुछ कुछ, प्लस आपने जो टेस्ट सीरीज दिया उसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिले वो भी नोट्स में है। तो ऐसे करके जब आप ये दोनों करके जाओगे, आखिरी में लास्ट 3 डेज में आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और आप गेट देना है, आप टॉपर होगे, दैट इज श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियोस। और अगर आपको इन बुक्स के बारे में नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा इनकी जो लिंक है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, या खुद भी जाके आप अमेजोन या किसी भी वेबसाइट से आप खरीद सकते हो उसको, इट डजंट मैटर। लेकिन आपको इस तरह से पढ़ोगे तो मुझे मिला है, और आई वॉज नॉट ए वेरी व्हाट टू से इंटेलिजेंट और समथिंग, मैं एवरेज था, फिर भी मुझे एयर 41 मिला। मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई, आप भी ये अपनाओगे तो फॉर श्योर आप भी टॉपर होगे गेट बायोटेक्नोलॉजी में। और गेट बायोटेक्नोलॉजी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कम है, 10 से 12 हज़ार बच्चे देते हैं, कंपटीशन बहुत कम है और अच्छी चीजें आपको मिल सकती हैं, आप टॉप IITs में हो सकते हो बस ये एक एग्जाम देने के बाद, ठीक है? तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट्स पे या फिर सब्जेक्ट थ्योरी पे मैं वीडियोस बनाऊं। तो उसके लिए अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि जो नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। सो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।